morning, students. Now, today I will take another lecture on the series of stress and strain. And आज हम इस लेक्चर में हुक्स लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, हम हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज हुक्स लॉ, राइट? सो देखिए, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ. Actually, this law is given by the scientist Hooks, and in this law, stress, that is the relation, a relation is given between the stress and the strain, right? So, Hooks law कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है? इसका डेफिनेशन है, फर्स्ट आप कहेंगे स्ट्रेस is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain within the proportional limit. Stress is directly proportional to strain within the proportional limit. And the second one is constant of proportionality. Constant of proportionality and constant of proportionality are the elastic. Constant of proportionality are the elastic constants, right? तो ये क्या था? हुक्स लॉ क्या था? Stress is directly proportional to strain, because in the Hooks law there is the relation between the stress and strain, right? And Hooks law defines the relation between the stress and strain. So what is the relation between the stress and strain? He has given the definition that stress is directly proportional to strain. जो stress होगा वो strain के directly proportional होगा, but कहां पे? Within the proportional limit. जो इसकी proportional limit होगी तक, उस तक जो इसका है stress जो है वो strain के proportional होगा. और if the stress crosses the proportional limit, अगर stress जो है proportional limit को क्रॉस करती है, then this law is not valid, right? So then this law is not valid. So you can say that in the strength of material, ये जो हमारा strength of material है सब्जेक्ट, इसमें हम जो भी कहां पे पढ़ते हैं, almost we take the stress is proportional to the strain, that is within the proportional limit, right? So proportional limit को अगर stress क्रॉस करती है, so then this law is not valid. This is the first part of the definition. And the second part of the definition is ये जो constant of proportionality है, constant of proportionality जो होगा वो क्या होगा? Constant of proportionalities are the elastic constants. उसको हम क्या बोलते हैं? They are called the elastic constants, the constant of proportionality. So mathematically, so it means that
मैथमेटिकली आपका क्या होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain. Stress is directly proportional to strain, right? Or you can say stress means sigma. Stress आपका sigma भी होगा, tau भी हो सकता है, तो इसको हम अभी रहने देते हैं. So stress is proportional to strain, and if we will, so this is the sign of the proportionality between the stress and the strain. And if we will say stress साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम रिमूव करेंगे, तो ये जो रिमूव करके जो हम कांस्टेंट यहां पे लगाएंगे, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द इलास्टिक कांस्टेंट. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या है इसकी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड द साइन ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी आर द इलास्टिक कांस्टेंट, राइट? So the constant of proportionality are the elastic constant. So this is the definition of this. Now Hooke's law, अगर आपका मैं कहूंगा सिंपल Hooke's law क्या होगा, सिंपल Hooke's law. सिंपल Hooke's law में है, सपोज करो ये आपका simple Hooke's law. So simply Hooke's law में क्या है कि if there is only one stress sigma, अगर आपकी एक स्ट्रेस जो है सिग्मा होगी, there is only one stress sigma, तो क्या होगा, अगर आपका एक स्ट्रेस सिग्मा है that is acting like this and there is only one stress sigma like this, right? तो क्या होगा, अगर आपका सिग्मा है in the x direction, if we are applying the load in the x direction and the stress is sigma in the x direction, then the strain is also in the x direction. So you can say according to the law of Hooke's law, stress is directly proportional to strain. तो क्या होगा, sigma proportional to epsilon x, right? Sigma proportional to epsilon x. Or you can say sigma is equal to E epsilon x. Sigma is equal to E epsilon x, where E is the constant of proportionality, right? So E क्या होगा, constant of proportionality. So this is equal to Young modulus of elasticity. So E यहाँ पे क्या है, elastic constant है, तो E आपका जो है Young modulus of elasticity होगा, right? So this is, if there is one normal stress, you can say sigma in the x direction. So this is the simple form of the Hooke's law. If there is only one stress is acting on the body, or you can say if there is only one load is acting on the body in the x direction, or in the y direction, or in the z direction. So in this case, the simple Hooke's law will be like this: sigma is equal to E epsilon x, right? If there is now here I considered only one sigma, that is in the x direction, and then your this Hooke's law is like this: sigma is equal to E into epsilon x. But let us assume that
let us assume that there is only one tau. अगर जहां पे ये पहले सिग्मा था तो there is only one tau. अगर जहां पे सिर्फ एक टाउ होगा तो उस केस में आपका हुक्स लॉ क्या होगा? इफ देयर इज ओनली वन टाउ, राइट? तो इसको भी ड्रा कर लेते हैं हम. सो दिस इज if there is only one tau, right? तो अगर आपका इसमें एक टाउ होता है, if there is only one tau, that is tau, right? If there is only one tau. So if there is only one tau, right? So in this case, if there is only one tau, then in this case is, so if there is only one tau, so then in this case जो आपका हुक्स लॉ होगा, so इस केस में आपका हुक्स लॉ क्या होगा? That is, there is only one shear stress, so you can say that tau is directly proportional to shear strain. So here you can say shear stress, here shear stress directly proportional to shear strain. Here shear stress is directly proportional to shear strain. So you can say that tau proportional to what is shear strain? Gamma, right? Tau proportional to gamma, or you can say tau is equal to G into gamma, where G is the modulus of rigidity. This is the elastic constant in this case when we are considering only one tau. So these are the simple forms of the Hooke's law. Here you have seen why it is said simple forms of the Hooke's law. Here you have seen that there is only one sigma, there is only one tau. When there is only one sigma and when there is only one tau, then the form of the Hooke's law is like this, right? But practically, what is the problem? Practically, these things are not there. You cannot say that body is only having a single, you can say, stress. So practically it is not possible. So there are, you can say, multiple type of stresses on the body. So in this case, this law is not valid, because when there are multiple type of stresses, तो ये लॉ आपका जो होगा क्या होगा? ये वैलिड नहीं होगा. तो फॉर दिस केस वी हैव डेवलप्ड द लॉ which is called the generalized Hooke's law, right? तो क्या होगा? वो generalized एक Hooke's law होगा जिसमें different type of stresses और different type of strains उसके ऊपर एक्ट करेंगी. तो उन stresses और strain को आपने एक लॉ जो इसमें फॉर्म किया आपने, अगर if there are number of stresses and if there are number of strains and we have to relate these number of stresses with the number of strain. So for this purpose we have developed that generalized Hooke's law, right? तो generalized Hooke's law जो है, that is only we can use when there are number of stresses on the body and the number of strains are there, and we have to relate the number of stresses and the number of strains with each other. So for this purpose we use the law which is called the generalized Hooke's law. Now understand what is generalized Hooke's law. I think a simple Hooke's law you have. This you have understood it well. When there is only one stress, whether it is normal stress or whether it is shear stress, when there is only one stress is acting on the body, for this case we use the simple Hooke's law, right?
उसके केस के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हुक्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, बट प्रैक्टिकली दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल. There are different cases of the stresses, there are the different cases of the strain there. So for this purpose, we use the generalized Hooke's law. और इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और समझने की इसे कोशिश कीजिए. This is very important law, you can say very important law as your this strength of material topic is concerned. Strength of material, your this topic is concerned. So here I will explain generalized Hooke's law. Understand this, right? So, generalized Hooke's law. तो जनरलाइज हुक्स लॉ जैसे मैंने आपको बताया व्हाई वी हैव डेवलप्ड इट, ये किस लिए करना पड़ा कि प्रैक्टिकली वी डोंट हैव सिंगल सिग्मा और सिंगल टाउ एक्टिंग ऑन द बॉडी. देयर आर मल्टीपल sigma and the multiple tau. So when there are the multiple sigma normal stresses or when there are the multiple shear stresses are acting on the body, then we need a generalized type of equation, right? So for to represent this, we need a generalized equation for this. So to get the generalized equation for this, generalized Hooke's law come into the existence. So generalized Hooke's law means for every case of stress and for every case of strain, हर stress के केस में, in every case of stress and in every case of strain, we use generalized Hooke's law. Or you can say when there is a general state of stresses. जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का क्या मतलब होगा? व्हेन देयर आर 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, then corresponding to that there are 9 number of strains are acting, right? As in case of multiple loading, we have read this thing. When there are the different type of stresses are acting, so what we do, we just at the point O, if I will take one point, तो एक point के ऊपर कितनी number of stresses act होंगी? 9 number of stresses are acting at one point. So corresponding to this, there are 9 number of states. So you can say this is the general state of stress. General state of stress means 9 number of stresses, and these 9 number of stresses is to be related with the 9 number of strains. When the situation is like this, we use the generalized Hooke's law. तो अब 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रेस टेंसर में भी पढ़ाया, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस में भी आपको पढ़ाया कि 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस हाउ वी रिप्रेजेंट, बट हियर अगेन आई विल शो यू सो दैट इज द रिवीजन आल्सो, एंड यू मस्ट नो दैट व्हाट आर द 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर. तो देखिए इसमें 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस क्या होंगी इसमें. दिस इज द जनरल, ये आपका एक क्यूबिक बॉडी आप लीजिए, दिस इज द क्यूबाइड बॉडी, राइट. तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इसको मैं सिर्फ right. So this is the cuboid body. So this is your bidirection, right? This is your z x direction, right? And this is your z direction, right? Or you could say this is your z direction, right?
तो इसमें 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस अगर हमें भरनी है, 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस हमें शो करनी है इसको, तो किस तरीके से हम 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस शो करेंगे, राइट? कैसे शो करेंगे इसमें? ये आपका है एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, and this is your z direction, right? So 9 number of stresses we have to show. इसको ले लीजिए आप। ये कौन सा प्लेन है? दिस इज योर बाई जेट प्लेन, राइट? तो ये बाई जेट प्लेन है आपका, दिस इज योर बाई एंड दिस इज द बाई जेट प्लेन। तो फर्स्ट लेटर जो है क्या शो करता है? प्लेन को। तो जहां पे फर्स्ट लेटर क्या आएगा? सिग्मा, सॉरी एक्स। तो ये फर्स्ट आपका आ गया सिग्मा एक्स एक्स, राइट? दिस इज पैरेलल टू दिस प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो दिस इज सिग्मा एक्स एक्स, दिस इज tau x by and this is tau x z, right? Likewise this is your x z plane, this is your x and z plane। तो x z plane में ये जो आपका होगा x z plane में ये आपका क्या होगा? tau by x tau by x, right? ये आपका होगा सिग्मा, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, सिग्मा by this is sigma by y and this is tau by z, right? अब आ जाइए इसमें कैसे शो कीजिए? दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, सो दिस इज योर क्या आएगा? टाउ जेड एक्स, टाउ जेड बाई एंड दिस इज इक्वल टू टाउ जेड जेड। सो दीज आर द 9 stresses. This I have already shown, I have already described in the chapter, but here again I am writing. So these are the 9 number of stresses which are acting on the body. When there are the 9 number of stresses, so it means that there are 9 number of strains also. Strain tensor आपने पढ़ा, तो वहां पे क्या था? 9 number of strains are also there. So again I will represent the 9 number of strains on the cubic body, so that you must memorize it, you must remember this thing, that this I have already done it, so I am doing again now, right? तो अब देखिए इसको स्ट्रेन टेंसर को किस तरीके से हम बताएंगे। अब इसी तरीके से हम स्ट्रेन को, so if there are 9 number of stresses, there are 9 number of strains, देखिए इसको भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, तो देखिए दिस इज योर दिस एक्स डायरेक्शन, this is y and this is z, right? Now I will represent the, ये आपकी 9 number of stresses थी, जहां पे मैं 9 number of strains को रिप्रेजेंट करूंगा, राइट? तो देखिए किस तरीके से होगा। सपोज दिस इज योर बाई, दिस इज योर बाई जेड प्लेन, ये आपका क्या है? ये आपका बाई है, तो ये आपका जेड है, सो दिस इज योर बाई जेड प्लेन। तो इसमें
क्या करेंगे, जो सिग्मा xx होगा बिल्कुल सेम है जैसे मैंने स्ट्रेन टेंसर जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर आपका स्ट्रेस टेंसर आपको इस तरीके से दिया है तो स्ट्रेन टेंसर में क्या करना है कि सिग्मा की जगह आपने क्या करना है, सिग्मा को रिप्लेस करना है एप्सिलॉन से, राइट। सिग्मा को किससे रिप्लेस करना है, एप्सिलॉन से, राइट। और टाउ को रिप्लेस करना है किससे, गामा से। टाउ को आपने किससे रिप्लेस करना है, गामा से रिप्लेस करना है, राइट। सो दिस इज ओनली द डिफरेंस हियर। तो देखिए, तो ये जो आपका है क्या आपका गया एप्सिलॉन एक्स एक्स, राइट। एक्स मींस एक्सप्लेन बाइजेट है तो मिसिंग क्या है इसमें एक्स, तो बाइजेट प्लेन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स लिखेंगे, एप्सिलॉन एक्स। और जो अगला एक्स होगा दैट इज इन द एक्स डायरेक्शन, तो ये आपका डायरेक्शन बताएगा एंड दिस विल शो यू द प्लेन। फर्स्ट लेटर विल शो यू द प्लेन एंड द सेकंड लेटर will give you the direction. This you must remember this thing in your mind, right? तो अब देखिए जो J होगा का this, ये क्या होगा आपका शेयर स्ट्रेन है, that is गामा this is your gamma by 2 x y, right? Gamma by 2 x y. This is your gamma by 2 x z, right? This is gamma by 2 x z, right? नाउ अब इसमें आ जाइए आप, दिस इज योर एक्स जेड प्लेन, राइट। दिस इज योर एक्स जेड प्लेन। तो जे एक्स जेड प्लेन है, एक्स और जेड, तो ये आएगा आपका गामा बाई 2, गामा बाई 2 बाई एक्स, राइट। दिस इज योर सिग्मा बाई बाई था तो उसमें क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई बाई, एंड दिस इज योर गामा बाई 2 gamma by 2 by z, right? This is gamma by 2 by z. अब आ जाइए थर्ड पोजीशन में, ये जो जे आपका जे वाला प्लेन, दिस इज योर एक्स बाई प्लेन, तो इसमें जे आएगा आपका गामा बाई 2 जेड एक्स, राइट। सो दिस इज गामा by 2 gamma by 2 z by, and this is equal to epsilon z z. So this is the way that how we will represents the 9 number of stresses as well as the 9 number of strain by taking the cuboid body. तो जहां पे आपने एक चीज पढ़ी थी, so there are total number of 9 number of stresses and the 9 number of strains. What here you have seen that 3 number of stresses are dependent on each other. 3 number of stresses are dependent on each other and 3 number of stresses are the normal stress, right? 3 number of जो stresses होंगी वो क्या है, आपस के ऊपर डिपेंड करेंगी। वो किस तरीके से डिपेंड करेंगी, आपस में कैसे डिपेंड करेंगी, दैट आई विल शो यू। और 3 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस जो है वो आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस मिलेगी, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट आपको नॉर्मल स्ट्रेन मिलेगा। और जो आपकी 3 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस हैं वो आपकी क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। तो आउट ऑफ द 9 स्ट्रेसेस वी हैव टू रिलेट ओनली 6 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन।
बिकॉज तीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है, तीन स्ट्रेसेस जो होंगी वो दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगी, तो इसलिए हमें 3 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस वहां से लेनी है और 3 नंबर ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस है, टोटल नंबर ऑफ 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस वी हैव टू शो ऑन द शो बाय द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, राइट। सो देखिए इसको आगे, so you see here, so out of these 9 stresses इसको लिख लेते हैं, out of these 9 stresses, out of these 9 stresses, ये जो आपकी 9 stresses हैं, out of these 9 stresses you can say 3 stresses are dependent, right, and first, second, 3 stresses are the normal stresses, राइट। अब ये डिपेंडेंट कैसे होगी, इसमें देखिए टाउ एक्स बाई इसमें देखिए टाउ एक्स बाई दिस इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स बाई इज इक्वल टू टाउ बाई एक्स, tau by z, tau by z, this is equal to tau z by, and tau z x, this is equal to tau x z. So these 3 stresses, कौन सा था, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ वाई जेड दिस इज इक्वल टू टाउ जेड वाई, एंड टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड. So these stresses are equal to each other. तो अगर ये स्ट्रेसेस टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स है, तो जहां पे अगर स्ट्रेन टेंसर से देखे तो इसी तरीके से आपकी इक्वेशंस बनेंगी. आपका स्ट्रेन का भी गामा एक्स बाई दिस इज इक्वल टू गामा बाई एक्स, राइट. गामा एक्स बाई दिस इज इक्वल टू गामा by z, this is equal to gamma z y, and gamma z x is equal to gamma z x. So these are the 6 number of stresses and the 6 number of strains. Here you will find that tau xy is equal to tau yx. तो अगर इफ आई रिलेट टाउ एक्स वाई विथ गामा एक्स वाई, तो देर इज नो नीड टू रिलेट दिस टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू इज विद द गामा वाई एक्स बिकॉज बोथ आर सेम, राइट. तो टाउ एक्स वाई, अगर आपका टाउ एक्स वाई इफ आई रिलेट विद दिस गामा एक्स वाई, सो देर इज नो नीड टू रिलेट दिस टाउ वाई एक्स विथ गामा वाई एक्स बिकॉज बोथ आर सेम, both are same. So you can say out of these 6 stresses and 6 strain, you can say only we have to take the 3 stresses because other 3 stresses are dependent on these 3 stresses, right. जो दूसरी 3 stresses होंगी वो इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है. तो हमें क्या करना है, 3 stresses हमें जहां से लेनी है एंड और 3 स्ट्रेस हमारी कौन सी होंगी, ये वाली normal stresses. So this is this normal stress and
this normal stress, this normal stress, and this normal stress. So there are 3 normal stresses and there are 3 shear stresses which we have to relate with the strains. So out of 9 stress and strain, we have to relate only 6, because in this case you have seen tau xy जो होगा वो tau yx के बराबर होगा. तो अगर हम tau xy और गामा xy को रिलेट करते हैं तो वो tau yx और गामा yx का भी रिलेशन क्या होगा, सेम होगा, राइट. तो इसलिए हमें आउट ऑफ 6 वी विल टेक 3 and 3 are the normal stresses. तो जनरलाइज हुक्स लॉ जो है वो हमारी 6 स्ट्रेसेस और 6 स्ट्रेन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा. 6 stresses we have to represent by the Hooke's law. Now next to understand that how we will relate these 3 stresses, right? 6 stresses, sorry, how we will relate these 6 stresses. तो इसको हम आगे समझने की कोशिश करें क्या है. So you can say that if I am मैंने अभी आपको जैसे बताया, इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा. if there is a relation, if there is a relation between इसमें tau xy and gamma xy. अगर tau xy और gamma xy के बीच में रिलेशन होगा तो then the relation between tau yx and gamma yx is same, right? तो जो रिलेशन आपका tau xy और गामा xy के बीच में होगा, तो जो tau yx एंड गामा yx के बीच में रिलेशन क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज tau xy दिस इज इक्वल टू tau yx and gamma xy this is equal to gamma yx. Likewise जो रिलेशन आपका tau yz और गामा yz के बीच में होगा, और जो रिलेशन आपका tau zy और गामा zy के बीच में होगा, वो क्या होगा, वो भी इस तरीके से सेम होगा. तो इसका मतलब ये है कि इन दो रिलेशंस को हम अगर एक रिलेशन में लिखते हैं तो दूसरा रिलेशन सेम है. जैसे मैंने आपको बताया कि 3 स्ट्रेसेस आर डिपेंडेंट, 3 स्ट्रेसेस में डिपेंडेंट होगी, तो इसमें इस तरीके से लाइकवाइज इस तरीके से आपको 3 आपको शेयर स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करना होगा और 3 आपको नॉर्मल स्ट्रेस इसमें मिलेगी, राइट. सो दिस इज अबाउट द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ. अब आगे इसको देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं. First we will find out the relation between the normal stress and normal strain, right? Normal stress और normal strain के बीच में relation देखते हैं कैसे बनता है. As you know, there are 3 normal stresses
three normal stresses. कौन सी होगी? सिग्मा x, सिग्मा y एंड सिग्मा z, राइट? तो तीन इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, तो क्या होगा? जो स्ट्रेन्स होंगी वो भी क्या होंगी? एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y एंड एप्सिलॉन z, राइट? तो अगर ये थ्री स्ट्रेसेस हैं, कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट दिस कि सिग्मा x इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन x, सिग्मा y is equal to E epsilon y, and sigma z is equal to E epsilon z, right? Can I write this? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? नहीं, मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? जब ये आपका बॉडी है, राइट, इसमें अगर आपका सिग्मा एक्स जो है स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन होगी, तो क्या होगा? जो स्ट्रेन इसमें होगी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नहीं होगी, वो आपकी वाई डायरेक्शन में भी होगी, वो आपकी जेड डायरेक्शन में भी होगी, और वो आपकी एक्स डायरेक्शन में भी होगी, राइट? स्ट्रेन्स जो है तीनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी इफ आई विल अप्लाई द स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन, राइट? जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं एक एक्शन लोड इस बॉडी के ऊपर अप्लाई करता हूं इन द एक्स डायरेक्शन, सो यू कैन से दैट्स अ स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन। इसकी लेंथ इलोंगेशन होगा एक्स डायरेक्शन में, लेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन जब इसकी इलोंगेशन इधर होगी तो क्या होगा? उसका डायामीटर भी क्या होगा? डायामीटर भी उसका बाई डायरेक्शन में बता रहा है, डायामीटर में भी क्या होगा? उसमें भी क्या होगा? वो चेंज आएगी। इसी तरीके से उसका थिकनेस डायरेक्शन में भी चेंज आएगी। सो वी कैन से दैट व्हेन वी आर अप्लाइंग द स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन, द स्ट्रेन्स विल प्रोड्यूस ऑल द थ्री नॉर्मल डायरेक्शंस। क्या होगा? स्ट्रेन्स जो होंगी वो तीनों नॉर्मल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगी। लेट आई विल से दैट आई एम अप्लाइंग द स्ट्रेस इन द वाई डायरेक्शन लाइक दिस। आई एम अप्लाइंग द स्ट्रेस इन द वाई डायरेक्शन, तो क्या होगा? क्या इसमें चेंज इन लेंथ नहीं होगी? जब मैं बाई डायरेक्शन में स्ट्रेन को अप्लाई करूंगा इस तरीके से, तो जो चेंज इन लेंथ होगी, अगर इसका डायमीटर डिक्रीज होता है तो लेंथ इसकी क्या होगी? चेंज इन लेंथ, तब भी इसमें एक्स डायरेक्शन में लेंथ चेंज होगी। इसी तरीके से अगर मैं बाई डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, जेड डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, तो लेंथ जो है वो सारे लेंथ जो है इन ऑल द केसेस दैट विल चेंज, राइट? तो ये इक्वेशन हम जो लिखते हैं सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन एक्स इन जनरलाइज केसेस के केस में अगर ये तीनों एक्ट कर रही हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस में, तो आप इस तरीके से इक्वेशंस को नहीं लिख सकते, राइट? तो इस तरीके से आप इक्वेशन नहीं लिख सकते, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन द लेंथ विल चेंज इन ऑल द थ्री डायरेक्शन, इफ आई एम अप्लाइंग द सिग्मा वाई, the length will change. If I am applying the sigma z, the length will change. If I am applying the sigma x, the length will change, right? So length will change in all the directions. Length will change by all the stresses, you can say. Whether you will apply the stress in x direction, whether you will apply the stress in y direction, and whether you will apply the stress in z direction. So this equation, I will not write the equation like this. This is wrong, right? So this is wrong. I cannot write the equation. तो अब इसको हमें किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हमें देखना है, ये आप देखिए, राइट? So in this case, when the three normal stresses sigma x, sigma y, and sigma z are acting on the body, so in this case, how we will calculate the epsilon x? We will calculate the epsilon x by using the superposition rule, the superposition method. अब superposition method क्या होगा? इसमें देखिए, इसमें we will consider the three loads separately, right? हम क्या करेंगे? तीन loads separately
लेंगे एक बॉडी के ऊपर, पहले हम सिग्मा एक्स लेंगे, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। इन ऑल द थ्री लोड्स we will calculate the epsilon x separately and then we will add these three loads, right? Then we will add and we will get the equation of the epsilon x. You understand this point? So in this case जैसे मैंने ये लिखा था कि अगर आप में तीन नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं सिग्मा x, सिग्मा y and सिग्मा z, I cannot write the equation like this because क्यों नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जब आप सिग्मा x अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर तब भी जो स्ट्रेन होगी वो तीनों डायरेक्शंस में होगी, एक्स डायरेक्शन में भी होगी, वाई में भी होगी, जेड में भी होगी। लाइकवाइज इफ आई एम अप्लाइंग द सिग्मा वाई ऑन द बॉडी देन अगेन देयर इज ए चेंज इन लेंथ आल्सो, राइट? उस वक्त भी क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगी इन द एक्स डायरेक्शन एंड इफ आई एम अप्लाइंग द सिग्मा जेड देन देयर इज आल्सो ए चेंज इन लेंथ, राइट? सो ऐसे केस में अगर मैं सिंपल इक्वेशन सिंपल हुक्स लॉ की जहां पे लिखता हूं तो वो क्या होगा, वो आपकी इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, दिस इज रॉन्ग। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम तीन लोड सेपरेटली तीन लोड लेंगे, राइट? सपोज करो एक ये लोड है आपका, ये एक बॉडी है, इसमें सिग्मा एक्स एक्ट करता है सिर्फ, ठीक है ना? राइट, ये फर्स्ट बॉडी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई right and plus sigma z. We will consider separately three loads, right? And each load is having the one, ये आपका जहां पे सिग्मा एक्स एक्ट करता है, जहां पे क्या है सिग्मा एक्स है, राइट? जहां पे दिस इज योर सिग्मा एक्स, सो इसमें आपका क्या है सिग्मा एक्स, ये आपका सिग्मा वाई, राइट? सो दिस इज योर सिग्मा वाई एंड दिस इज योर सिग्मा जेड। तो ये आपका सिग्मा जेड इस तरीके से एक्ट करेगा, this is your sigma z, right? So these three loads we will consider three loads separately, 1, 2 and 3, and on each load sigma x will act on one load, sigma y will act on one load and sigma z will act on another load, right? So I have to calculate the epsilon x. क्या calculate करना है हमने? epsilon x I have to calculate. तो एप्सिलॉन एक्स किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि जब सिग्मा एक्स इसके ऊपर होगा उस वक्त तो चेंज इन लेंथ इन द एक्स डायरेक्शन होगी, वो तो होगी ही होगी, तो एप्सिलॉन एक्स जहां पे भी हमें मिलेगा। बट जब सिग्मा वाई अप्लाई करेंगे तो उस वक्त भी क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगा, उस वक्त भी चेंज इन लेंथ होगा इफ आई विल अप्लाई द सिग्मा वाई एंड इफ आई विल अप्लाई द सिग्मा जेड देन आल्सो देयर इज ए चेंज इन लेंथ, then also there is a change in length. So you can say separately we will calculate the epsilon x here, we will calculate the epsilon x here and we will calculate the epsilon x here and then we will add all these three and you will get the epsilon x, right? You will get the epsilon x. समझ आया आपको? चेंज इन लेंथ इन जब सिग्मा एक्स होगा तब भी आपका चेंज इन लेंथ होगा, जब सिग्मा वाई होगा देन देयर इज आल्सो चेंज इन लेंथ एंड व्हेन द लोड the stress is sigma z then also there is a change in length. Or you can say when a stress is acting on the body then epsilon or the strain
आर ऑल इन द 3 नॉर्मल डायरेक्शन। स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगी वो तीनों नॉर्मल डायरेक्शंस के ऊपर प्रोड्यूस होंगी। तो सिग्मा एक्स के केस में भी हमें एप्सिलॉन एक्स मिलेगा, सिग्मा वाई के केस में भी एप्सिलॉन एक्स होगा, सिग्मा जेड के केस में भी होगा। तो ये आपका जनरलाइज हुक्स लॉ है, राइट। इसमें हमें कहें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से कैसे करेंगे देखिए इसका। तो इसमें इसका मतलब है कि जो आपकी इक्वेशन होगा एप्सिलॉन एक्स, तो देखिए अब इसको इसकी इक्वेशंस बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो देखिए, सो एप्सिलॉन एक्स this is developed by the sigma x on the load, this is developed by the sigma y on the load, and this is also developed by the sigma z on the load, right। तो एप्सिलॉन x हमें निकालने के लिए क्या करेंगे कि 3 हमने ब्लॉक लिए, इनके ऊपर 3 डिफरेंट लोड मैंने डिफरेंट डायरेक्शंस में लगाए, राइट। ये फर्स्ट ब्लॉक में जो लोड था दिस इज इन द x डायरेक्शन और सिग्मा x प्रोड्यूस हुआ। सेकेंड ब्लॉक में लोड आपका बाई डायरेक्शन में लगाया तो सिग्मा बाई जहां पे मिला और ये जेड डायरेक्शन में है और सिग्मा जेड मिला। तो क्या करेंगे हम इन तीनों में सेपरेटली वी विल कैलकुलेट एप्सिलॉन एक्स। तीनों लोड के ऊपर हम सेपरेटली एप्सिलॉन एक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे इन तीनों को जमा करेंगे तो टोटल हमारे पास एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आएगी, इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो इसमें फर्स्ट लोड है आपका, इसमें एप्सिलॉन एक्स क्या होगा, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन ई, राइट। एप्सिलॉन एक्स दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई अकॉर्डिंग टू द किस में सर ये कैसे आया फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, सिग्मा इज इक्वल टू ई इनटू एप्सिलॉन, right, therefore epsilon is equal to sigma upon e, right। तो ये आ गया also first equation, that is for the first load। समझा गया बात, क्योंकि इसमें क्या था जो लोड था that is in the x direction, तो epsilon जो आपका था स्ट्रेन थी वो भी आपकी x डायरेक्शन में थी, चेंज इन लेंथ क्या थी x डायरेक्शन में थी, तो ये तो सीधा आएगा सिग्मा x upon e। Now just consider the load number 2। Here I am applying the load in bidirection. Stress is like this, sigma y is like this, right। तो देखिए ये जो स्ट्रेस है आपकी, तो इस केस में अगर मैं ऐसे लिखूं मैं एप्सिलॉन बाई दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई अपॉन ई, राइट। एप्सिलॉन बाई क्या होगा सिग्मा बाई अपॉन ई, राइट। बट हियर I don't need epsilon y, I don't need epsilon y। हमें मुझे क्या चाहिए इसमें, हमें epsilon x चाहिए, चेंज ऑफ द लेंथ इन द x डायरेक्शन। सेपरेटली अगर मैं इसको देखूंगा तो क्या होगा epsilon y दिस इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन e, ठीक है ना। सो आर यू कैन से इन सेकंड केस epsilon y this is equal to sigma y upon e, राइट। अब देखिए ये जो epsilon y होगा ये आपका अगर एक्सिस है, राइट। epsilon y जो है ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, डायरेक्शन ऑफ द लोड, राइट। ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, डायरेक्शन ऑफ द लोड प्रोड्यूस होगा। तो डायरेक्शन ऑफ द लोड जो प्रोड्यूस होगा तो ये क्या होगी आपकी, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोल सकता हूं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है, द स्ट्रेन
which develop along the direction of the load. The strain which develop along the direction of the load. So here you have seen that here the direction of the load is bidirection, और जो आपका एप्सिलॉन बाई है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो जे आपकी क्या होगी, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो आप कह सकते हैं दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ. बट हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए चेंज इन लेंथ, मींस इस डायरेक्शन में. हमें क्या चाहिए, चेंज इन लेंथ इस डायरेक्शन में, मींस एप्सिलॉन एक्स चाहिए इस डायरेक्शन में. तो ये एप्सिलॉन एक्स जो होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. इसमें जो एप्सिलॉन एक्स होगा, चेंज इन लेंथ इन केस ऑफ दिस, वो क्या होगा, वो लेटरल स्ट्रेन होगी ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड. वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, परपेंडिकुलर टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड. और जो स्ट्रेन आपका परपेंडिकुलर टू द लोड प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन. उसको क्या बोलते हैं हम, लैटरल स्ट्रेन. तो हमें एप्सिलॉन एक्स निकालना है. तो एज यू नो म्यू इज पास्कल, राइट. म्यू क्या है, so epsilon by मैंने बोला longitudinal strain because it is along the load. ठीक है ना. तो इसी तरीके से जो आपका एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन एक्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन along the लोड होगा. तो एप्सिलॉन एक्स जो है, ये मैंने जैसे ये बताया, दिस इज योर एप्सिलॉन एक्स इन द एक्स डायरेक्शन. सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द लोड, राइट. तो ये परपेंडिकुलर टू द योर लोड होगा, तो एप्सिलॉन एक्स इस केस में क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा. क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन, बिकॉज it is perpendicular to the load. चार समझ आ गया. सो एज पर पॉइसन रेशियो, जो पॉइसन रेशियो के अकॉर्डिंग मैं इसको मिटा देता हूं, डोंट लीव दिस. जहां पे एक ब्लॉक मैंने तैयार किया था, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड बताया, और अब तीनों को निकाल के इसको हमें ऐड करना है. ठीक है. तो अब देखिए, सो एज पर, तो पॉइसन रेशियो क्या है आपकी, पॉइसन रेशियो, दिस इज म्यू इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन lateral epsilon longitudinal. This is your this, right? So therefore epsilon lateral, this is equal to minus mu into epsilon longitudinal. ठीक है, माइनस एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल. जहां तक क्लियर है. तो एप्सिलॉन लेटरल यहां के क्या है, दिस इज एप्सिलॉन एक्स. एप्सिलॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन वाई. इस केस में क्या था, मैंने लिखा ना, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन क्या था, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था. क्यों, क्योंकि इट इज एक्टिंग अलोंग द लोड. लोड आपका इस तरीके से परपेंडिकुलर, ये आपका लोड इस तरीके से है, दिस इज परपेंडिकुलर लोड, राइट. और जो स्ट्रेन भी इसका हो रहा है, जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा, जो स्ट्रेन हो रहा है इसको, तो क्या होगा, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लोड. तो जो जहां पे जो स्ट्रेन होगी, यहां पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन बाई, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिग्मा बाई अपॉन ई, राइट. तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन बाई, और यू कैन से एप्सिलॉन x is equal to
माइनस म्यू इनटू एप्सिलॉन बाई क्या था, सिग्मा बाई अपॉन ई, सिग्मा बाई अपॉन ई, राइट। तो ये आ गया सेकंड लोड का। लाइकवाइज ये एप्सिलॉन एक्स आ गया इसका सेकंड का। और जो थर्ड लोड का एप्सिलॉन एक्स होगा सेम तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब लोड आपका जेड डायरेक्शन में होगा तो जो आपका एप्सिलॉन जेड आएगा, दिस इज सिग्मा जेड अपॉन ई एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इसी तरीके से वहां पे आपको एप्सिलॉन एक्स निकालना है जो कि लेटरल स्ट्रेन होगा। तो इन जेड डायरेक्शन में, अगर जेड डायरेक्शन में लेंगे तो एप्सिलॉन एक्स इन थर्ड केस में क्या होगा, माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। ये समझ आ गया आपको, राइट। सो अब इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लीजिए। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज व्हेन द लोड इज एक्टिंग इन द जेड डायरेक्शन, or you can say when the sigma jet is acting on the load, उस वक्त जो एप्सिलॉन एक्स होगा दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। सो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन वी विल ऐड ऑल दीज थ्री इक्वेशंस। हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स इन द or you can say strain in the x direction when the three normal stresses are acting on the load epsilon x, ठीक है ना। तो strain in x direction इसमें टोटल क्या होगा, so therefore epsilon x is equal to sigma x upon e minus mu into sigma y upon e minus mu into sigma z upon e, right? So this is the first equation, right? This is the first equation, very important one, staying in the x direction. Likewise इसी तरीके से, अगर इसी तरीके से हम एप्सिलॉन बाई कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन बाई दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई अपॉन ई, राइट, माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई minus mu sigma z upon e, right? This is your sigma by, and likewise epsilon z, this is equal to epsilon z is equal to क्या होगा, ये epsilon z है तो sigma z upon e, सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस व्हेन द थ्री नॉर्मल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। व्हेन द थ्री नॉर्मल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, These are the three normal stresses, because जैसे मैंने बताया कि जब तीनों नॉर्मल स्ट्रेसेस बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे तो जो आपका होगा एक्स डायरेक्शन में भी चेंज होगा, वाई डायरेक्शन में भी चेंज होगा और जेड डायरेक्शन में भी चेंज होगा। एंड व्हेन द थ्री स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो उस वक्त एप्सिलॉन एक्स क्या आएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू sigma y upon e minus mu sigma z upon e, and epsilon y this is equal to sigma y upon e minus mu sigma x upon e minus mu sigma z upon e, and likewise this. So this is the three equation for the normal stresses, right? अब आगे देखिए,
Now we have to find the three relations. ये जो थे ये थ्री रिलेशंस हैं आपके, थ्री रिलेशंस between normal stresses and strains. ठीक है ना, ये यहाँ पे तीन रिलेशंस. अब आपने यू हैव टू फाइंड द थ्री रिलेशंस बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन. अब तीन रिलेशन आपको उसमें चाहिए, थ्री रिलेशंस बिटवीन द शियर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, राइट. तो इस केस में हम सुपरपोजिशन रूल अप्लाई नहीं करेंगे. वी विल नॉट अप्लाई द सुपरपोजिशन रूल एंड वी विल राइट डाउन डायरेक्टली. तो क्या आएगा इसमें, गामा एक्स वाई दिस इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई अपॉन टाउ एक्स वाई अपॉन जी, टाउ एक्स वाई अपॉन जी. सेकंड, gamma x z this is equal to tau x z upon g. This is first, this is second, and this is third. Gamma y z this is equal to tau y z upon g. So these are the three relations between the shear stress and shear strain. So ये आपके तीन रिलेशन होंगे shear stress और shear strain के बीच में. These are the three relations, right? So this is very important one. This is very important one. These equations. So this is all about your generalized Hooke's law, right? Generalized Hooke's law में आपने देखा कि you will get the कितनी इक्वेशंस आपको मिली, 1 2 3 4 5 and 6, right? We have got the 6 equations in the generalized Hooke's law when there are the three normal stresses and the three shear stresses I am taking here because there are the total 6 shear stresses. But as I told you that these 6 shear stresses, they are dependent on each other. So we will only consider 3, and the 3 stresses you can say that is same. So 3 equations are there and 3 equations are there. So there are the total 6 equations. So I think you have understood it well. कि simple Hooke's law क्या होगा? Simple Hooke's law क्या है कि जब वहां पे सिर्फ एक सिग्मा एक्ट करेगा बॉडी के ऊपर, जहां एक टाउ एक्ट करेगा बॉडी के ऊपर, तो उस वक्त जो इक्वेशन होगी मैथमेटिकल, दैट इज कॉल्ड द सिंपल हुक्स लॉ. बट जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली आप एक सिग्मा या एक टाउ एक्ट नहीं करता. हम जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लेते हैं जहां पे आप कहते हैं कि जनरल स्टेट, अगर इन केस ऑफ स्ट्रेस जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होगी कि 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर एंड व्हेन देयर आर 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस देयर आर 9 नंबर ऑफ स्टेट्स. तो उस केस में we have developed the generalized Hooke's law और उसमें we have got the 6 equations which are very important. और मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बिकॉज मैंने इसको बहुत डिटेल और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की आपको. तो आप इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कीजिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस आल्सो. So this is all about your Hooke's law and generalized Hooke's law. So next lecture जो आगे होगा वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर हम देंगे. जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट आई विल टेक अप टुमारो. So today it is all about that. So thank you very much.